friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson and a spoken class. And today we will be in a spoken class. Before getting to the board, once again I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't leave it, don't skip it, don't leave in the middle, and definitely like the video, subscribe the channel and comment and share the video lesson. So let's go to the board conversation. Today we will be in conversation class. Though we have already learned WH words, there are 9 WH words and derived WH questions in previous video lesson. And first of all we will know about WHO who and WHOM whom. You know that WHO who and whom have the same meaning in sense, but there is difference between them in structure. So let's start the conversation. Watch the video very carefully and practice with me. WHO who discovered the sea route to India? It means भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता किसने पता लगाया? Who discovered the sea route to India? यहाँ क्वेश्चन है, here is question, और इसका आंसर यहाँ पर है well it was Vasco da Gama. इसका उत्तर कैसे देंगे? well it was Vasco da Gama. फिर क्वेश्चन है who drafted the Constitution of India? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? who drafted the Constitution of India? इसका हो जाएगा it was डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया. क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन को किसने स्थापित किया? हु एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन? इसका आंसर क्या होगा? इट वाज स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का एस्टैब्लिश किया. हु इज योर आइडियल पर्सन? आपका आदर्श व्यक्ति कौन है? Well, my father. हम यहाँ कहेंगे well, my father, well, my parents, well, my brother, well, my teacher. कुछ भी कह सकते हैं. Is your favorite political leader? आपका मनपसंद राजनेता कौन है? Without doubt, महात्मा गांधी. बिना कोई संदेह का महात्मा गांधी. Who is the leader of the ruling party in the lower house in the Indian Parliament? संसद के निचले सदन में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? इट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी. मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं. तो इस तरह से हु का प्रयोग आप कर सकते हैं. मैंने यहाँ बहुत ही थोड़ा किया है, थोड़ा बताया है, इसका प्रैक्टिस कीजिए कम से कम इतना. फिर उसके बाद आइए होम का. एक बात समझ लीजिए, हु का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए होता है और होम का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए होता है. तो आइए यहाँ पर देख लीजिए. होम डू यू वांट टू मीट? आप किससे मिलना चाहते हैं? I want to meet the principal. Whom do you want to meet? I want to meet the principal. मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ. मैं अपने दोस्त से मिलना. I want to meet my friend. I want to meet my elder brother. I want to meet the head man of this village. कुछ भी कह सकते हैं. To whom are you speaking? तुम किससे बात कर रहे हो? और who are you speaking to? आप किससे बात कर रहे हो या तुम किससे बात कर रहे हो? I am speaking to my brother. मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ. I am speaking to my sister. I am speaking to my friend. I am speaking to my father. कुछ भी कह सकते हैं. To whom is the Lok Sabha responsible? To whom is the Lok Sabha responsible? लोक सभा किसके प्रति उत्तरदायी है? The Lok Sabha is responsible to the country. लोकसभा देश के जनता के प्रति उत्तरदायी है. To whom is the Lok Sabha responsible? लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? The Lok Sabha is responsible to the country. इसका मतलब हुआ लोकसभा देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है. To whom is the PM responsible? PM प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? The PM is responsible to the Parliament. PM पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है. PM संसद के प्रति उत्तरदायी है. Whom are you willing to consult? आप किससे मिलने की इच्छा कर रहे हैं? Well, I'm well
आई एम विलिंग टू कंसल्ट डॉक्टर जॉनसन। मैं डॉक्टर जॉनसन से मिलने की इच्छा कर रहा हूँ। होम आर यू विलिंग टू कंसल्ट? आप किससे मिलने की इच्छा कर रहे हैं? वेल आई एम विलिंग टू कंसल्ट डॉक्टर जॉनसन। मैं डॉक्टर जॉनसन से मिलने की इच्छा कर रहा हूँ। होम आर यू गोइंग टू प्रेजेंट दिस गिफ्ट टू? आप इस गिफ्ट को किसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं? किसे प्रदान करने जा रहे हैं? किसे देने जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस गिफ्ट टू माई एल्डर ब्रदर। मैं इस गिफ्ट को अपने बड़े भाई को देने जा रहा हूँ। तो इस तरह से होम का भी प्रयोग आपने देखा। इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब फिर दोनों का एक साथ बोल देता हूँ, मेरे साथ आप बोलते जाइए। Who discovered the sea route to India? Well, it was Vasco da Gama. Who drafted the Constitution of India? It was Dr. B.R. Ambedkar. Who established Ramakrishna Mission? It was Swami Vivekanand. Who is your ideal person? Well, my father. Who is your favorite political leader? Without doubt, Mahatma Gandhi. Who is the leader of the opposition party in the Lok Sabha? Mr. Rahul Gandhi is. Who is the leader of the ruling party in the lower house in the Indian Parliament? It's Mr. Narendra Modi. Whom do you want to meet? I want to meet the principal. To whom are you speaking, or who are you speaking to? I am speaking to my brother. To whom is the Lok Sabha responsible? The Lok Sabha is responsible to the country. To whom is the PM responsible? The PM is responsible to the Parliament. Whom are you willing to consult? Well, I am willing to consult Dr. Johnson. Whom are you going to present this gift to? I am going to present this gift to my elder brother. इस तरह से आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस कर लिया है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ से ऑपोजिशन दिया है यहाँ द आया है THE, इसको दी पढ़ेंगे। वावल लेटर रहेगा उसके पहले, इसी वर्ड के पहले वावल लेटर रहेगा और उसके पहले द रहेगा, तो हम द को हम दी पढ़ेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फिर जैसा कि आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास में है, इसीलिए आज हम लोग कन्वर्सेशन भी करेंगे और साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे कि विभिन्न सिचुएशन में हमें क्या क्या बोलना चाहिए। तो आइए फिर बोर्ड पर देख लीजिए। इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ एंड अदर्स। हम खुद को और दूसरे से कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दो व्यक्ति है, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ दोनों तरफ का मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका मैं हिंदी में अर्थ बता दूंगा। यहाँ माधव और सुनील है, दो व्यक्ति हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अचानक कहीं भेंट हो गई और एक दोनों बातचीत करने लगते हैं। माधव, एक्सक्यूज मी, कैन आई सीट हियर प्लीज? माधव सेज, excuse me, can I sit here please? Sunil, yes please. Madhav, thank you, I am Madhav Singh. Sunil, I am Sunil Chaudhary. Madhav, what do you do, Mr. Chaudhary? Sunil, I am a teacher in a government school, and what about you? Madhav, I am an accountant in the Bank of India. Sunil, where are you from? Madhav, I am from Mumbai, but now I am settled in Kolkata. And you? Sunil, I am from Kolkata itself. Madhav, my stop. Okay. Bye Sunil. Sunil, bye. एट दी वेजिटेबल शॉप। जैसे हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमें अंग्रेजी में क्या बोलना चाहिए। तो देखिए, सेलर और बायर है, बेचने वाला और खरीदने वाला। पहले अंग्रेजी में सेलर, मे आई हेल्प यू सर? बायर, यस थैंक्स,
How much are tomatoes today? Yes, thanks. How much are tomatoes today? Seller, well, they are 40 rupees a kilo. Buyer, oh, it's a little dear. Do you have any consideration? Seller, sorry, no bargaining. We sell at fixed rate. Buyer, okay, I will take 3 kg please. Seller, here it is. Buyer, how much should I give you? Seller, Seller, just rupees 120 please. Buyer, here it is. Seller, thanks. Buyer, thanks. अब इसका अर्थ समझ लीजिए हिंदी में। माधव और सुनील दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। माधव, एक्सक्यूज मी, कैन आई सीट हियर प्लीज? माधव कहता है, क्षमा करें, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सुनील, यस प्लीज, हाँ बिल्कुल बैठिए। माधव, थैंक यू, आई एम माधव सिंह। धन्यवाद, मैं माधव सिंह हूँ। सुनील, आई एम सुनील चौधरी, मैं सुनील चौधरी हूँ। माधव, व्हाट डू यू डू मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या करते हैं? सुनील, आई एम अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। व्हाट अबाउट यू? मैं एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक हूँ। और आप क्या करते हैं? माधव, आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया। मैं बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ। सुनील, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? माधव, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। बट नाउ आई एम सेटल इन कोलकाता। एंड यू? लेकिन अभी मैं कोलकाता में ही सेटल हो गया हूँ, रह रहा हूँ। और आप? सुनील, आई एम फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ, मैं कोलकाता का ही रहने वाला हूँ। माधव, ओके बाय सुनील। माधव, मेरा स्टॉप आ गया। ओके बाय सुनील। सुनील, बाय, अलविदा। उसके बाद है एट द वेजिटेबल शॉप, सब्जी दुकान पर। ग्राहक और विक्रेता, सब्जी वाला, दोनों बातचीत कर रहे हैं। सेलर, जो विक्रेता है। बायर, जो क्रेता है, जो खरीदता है। सेलर, मे आई हेल्प यू सर? सेलर कहता है, क्या सेवा कर सकता हूं श्रीमान जी मैं आपका? बायर, यस थैंक्स, हाउ मच आर टोमेटोज टुडे? हाँ धन्यवाद। टोमेटो आज कैसे बिक रही है? टोमेटो आज कैसे दे रहे हो? सेलर, वेल दे आर 40 रुपीज अ किलो। जी, 40 रुपये 1 kg। टोमेटो 40 रुपये 1 किलो का बिक रहा है। सेलर, वेल दे आर 40 रुपीज अ किलो। टोमेटो 40 रुपये किलो बिक रहा है। बायर, ओह इट्स अ लिटिल डियर। बायर कहता है, ओह ये तो थोड़ा महंगा है। डू यू हैव एनी कंसिडरेशन? क्या कोई विचार है? कम करने का कोई विचार है? सेलर, सॉरी, नो बार्गेनिंग। क्षमा कीजिए, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई मोल भाव नहीं। वी सेल एट फिक्स्ड रेट, हम लोग फिक्स्ड रेट पर बेचते हैं, तय रेट पर बेचते हैं। बायर, ओके आई विल टेक 3 kg प्लीज। ठीक है, मुझे 3 kg टोमेटो चाहिए। सेलर, हेयर इट इज। सेलर कहता है, यह लीजिए, हो गया। बायर, हाउ मच शुड आई गिव यू? बायर कहता है, कितना मैं आपको अदा करूं? सेलर, जस्ट रुपीज 120 प्लीज, केवल 120 रुपये। बायर, हेयर इट इज, यह लीजिए। सेलर, थैंक्स, धन्यवाद। बायर, थैंक्स। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए
लिंक पर भी आप जा कर के प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। मैं स्पोकन इंग्लिश में भी जो आवश्यकता है लोगों को, सिचुएशन पर हो चाहे कन्वर्सेशन पर हो, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। आप ज़रूर मेरे वीडियो लेसन को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।